Very good morning to class 11 students. I hope you all are fit and fine at home. So, students, as we were solving the practical questions of our chapter, not for profit organization, today also, students, we will solve two full fledged questions of this chapter, and one question I will assign you as homework, that is, homework question will be question number 41, and classwork questions will be question number 39, 38, and question number 40. So today we will conclude this chapter by discussing some multiple choice question also and some short question also of this chapter to get better understanding. So let's start solving the question number 38. Prepare income and expenditure account and a balance sheet from the following receipts and payment account and the balance sheet. Now you are given with the so in this question you are already given with the opening balance sheet as well as the receipts and payment account. You only need to prepare the income and expenditure account, also the closing balance sheet. So we will solve this question. So see, first of all we'll prepare the income and expenditure account. So this is the income and expenditure account. In receipts and payments account, you are given with the salary 15,000, and in the opening balance sheet, it is given that salary outstanding was 2,000, and you know this outstanding salary will be minus. Outstanding at the beginning will be minus. So 15,000 minus 2,000, that will be 13,000, right? Then in expenses portion you are given different data to for 2018, 19, 2019, 20. You will take 2019, 20 because in income and expenditure account we take uh, that year data for which we are preparing the income and expenditure account. So we will take 7,500. Nothing else adjustment is to be made. Then printing and stationery, there is 3,400. We'll write 3,400. Rent 9,000. Similarly 9,000. Now we'll see the income side of the income and expenditure account. In this, you are given with the subscription amount for different years. That is for 2018, 19, 19, 20, 20, 21. So you will take 2019, 20 subscription, that is 24,000, and in this amount you will add the subscription which was received in advance, and the subscription which is received in advance इज ₹1000 एंड इट इज़ एडेड. आपको पता है जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव होती है इन द बिगनिंग वो ऐड हो जाती है. तो 24,000 में 1000 ऐड कर दिया, दैट कम्स आउट 5000. अब बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को निकालना. देखो आपको बोला गया है कि जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं 60,000 के, तो इधर से ही हमारा आंसर निकल जाता है. दैट इज 60,000 का 10%, दैट इज अवर 6,000. तो 6,000 जो है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारा होना चाहिए, जबकि इधर आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 5,500. तो आप इधर जो है शो करोगे दैट इज 5,500 में प्लस आपका 500 आउटस्टैंडिंग, राइट. सो इसलिए इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गया 6,000. ओके स्टूडेंट्स, और बाय डोनेशंस 4,000, ये आपको एज इट इज़ गिवन है. ठीक है, तो जब आपने इसका टोटल किया दैट कम्स आउट 35,000, और इन सबको माइनस करने के बाद सरप्लस अमाउंट जो है वो आ गई. अब हम देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट. सिमिलरली हम जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी है वो इधर 10,000 डालेंगे. क्यों? बिकॉज पहले भी लाइफ मेंबरशिप फ़ी गिवन थी 8,000 की, और अब नई आ गई 2,000 की. तो अब कितनी लाइफ मेंबरशिप फ़ी होगी? 10,000 की. डोनेशन फॉर बिल्डिंग्स, लेगेसीज, कैपिटल की अमाउंट, उसमें एंट्रेंस फ़ी ऐड की और सरप्लस ऐड किया, तो ये अमाउंट आ गई. देन इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन 700, क्योंकि इधर आपको गिवन है ना कि इसी साल में 2020-21 में ही आपको 2020-21 की आपको 2020 में मिल गई. तो ये जो है एडवांस सब्सक्रिप्शन है एट द एंड, तो ये यहाँ पे आएगी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
कितने के थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पिछली बारी बैलेंस शीट में 1500 के, पर इस बार जो है आपने पे कर दिए 1200, तो अभी भी कितने आउटस्टैंडिंग है 300 के, तो ये इधर शो हो गया। इसके बाद फर्नीचर जितनी पहले ओपनिंग बैलेंस था फिर जितने का परचेज कर लिया वो टोटल अमाउंट, इन्वेस्टमेंट्स की अमाउंट, कैश की अमाउंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अमाउंट, इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट, देन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आप कैसे निकाल लोगे, सी 850 की थी सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, राइट, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है 850, ठीक है, और इधर आपको गिवन है दैट इज सब्सक्रिप्शंस की अमाउंट 24,000 एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है पहले थी 850 की, ठीक है। उसके बाद इधर शो कर रहा है कि 18-19 की 600 मिल गई है, थी 850, इस साल मिल गई 600, दैट मीन्स अभी भी कितनी आउटस्टैंडिंग है, दैट इज़ 250, और एक्रूड इंटरेस्ट टोटल कितने का है 1500 का। अभी ये कैसे आया, पहले से 1000 का एक्रूड इंटरेस्ट था, ठीक है, एक ये वाला इंटरेस्ट और एक जो 500 का अब एक्रूड हुआ है, ठीक है, वो तो टोटल 1500 का एक्रूड इंटरेस्ट आ गया। तो ये जो है आपका, जब आप इन दोनों को टोटल करोगे तो योर एसेट साइड विल बी इक्वल टू द लाइबिलिटी साइड। सो स्टूडेंट्स, this is your solution of question number 38. Now we will solve question number 40. So yes, let's read the question first. The receipts and payment account of Govinda Music Club for the year ending 31st March 2025 was as under. Okay, receipts and payment account given है. Prepare the income and expenditure account for the year ending 31st March 2025 and balance sheet as that date after taking the following information into account. Additional information में you are given that subscription in arrear for 24-25, it has been decided to allocate 1/5 of the life membership fees to the revenue. 31st मार्च का डेटा गिवन है आपके पास, ठीक है, सैलरीज बताया कितनी है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड बताई गई है, और ये बताया गया है कि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस और क्लीनिंग एक्सपेंसेस कितने जो हैं आउटस्टैंडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। जो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है ना वो यहाँ पे आएगा एट बैंक 55,300, फर्नीचर की अमाउंट आएगी, इक्विपमेंट्स की ये आपको गिवन है एडजस्टमेंट्स में, ठीक है, एडिशनल पॉइंट्स में। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3000 कैसे आई हम ये देखते हैं। सी टू सब्सक्रिप्शन 23-24, 24-25, तो ये थी पिछले साल की सब्सक्रिप्शंस जो अभी हमें रिसीव हुई है, ठीक है। एडिशनल पॉइंट में पढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शंस इन अरियर्स फॉर 24-25 वर 4000, 24-25 की 4000 थी, बट अभी जो ये देखो जो अभी रिसीव हुई है हमें 23-24 में, दैट मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग होगी 3000, तो इन सबको ऐड कर देंगे, और जो है इन सबको ऐड करने के बाद लाइबिलिटी में कुछ भी नहीं आता, तो दिस इज़ अवर ओपनिंग कैपिटल फंड। अब जो है हम अपना इस एनपीओ का जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड, ठीक है। इसमें पेमेंट सब भी दी हुई हैं, कैपिटल की भी रेवेन्यू नेचर की भी, बट आपने सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाली जो है उठानी है। सबसे पहले सैलरीज देखते हैं, 5000 गिवन है पेमेंट्स में, बट इधर आपको बताया गया है दैट इज सैलरी इज़ 500 पर मंथ, तो 500 पर मंथ है, दैट मीन्स 500 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कितनी हो गई सैलरी 6000, तो दैट मीन्स 5000 हमने इस बार पे की है और आउटस्टैंडिंग अभी भी कितनी है 1000, तो 6000 टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद गिवन है रेंट 7200 एज इट इज़ आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने बोला है दैट इज़ एडिशनल पॉइंट में, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी है 6400 की, बट 800 उसमें आउटस्टैंडिंग है, तो 7200 की इलेक्ट्रिसिटी हो गई।
उसके बाद रिपेयर्स गिवन है, तो रिपेयर्स जो हैं वो 800 की हैं। डांस एक्सपेंसेस भी गिवन है, एज इट इज़ उतार लिए। अब क्लीनिंग एक्सपेंसेस है ही नहीं, बट एडिशनल पॉइंट में गिवन है कि क्लीनिंग एक्सपेंसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए हमने 200 इधर लिख दिया। ठीक है, फिर जो देखो उन्होंने बोला है कि जो इक्विपमेंट्स को सोल्ड किया है ना, 3000 के इक्विपमेंट्स को जो सोल्ड किया है, उसकी बुक वैल्यू थी, उसको सोल्ड किसने में कितने में किया है हमने 600 में, जिसकी बुक वैल्यू 3000 है और उसको हमने सोल्ड 600 में किया है, दैट इज़ 2400 का हमें क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। और लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, और जो प्रॉफिट होता है वो गेन जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है। इसके बाद टू प्राइजेस 8400 और टू इंश्योरेंस का आप देखते हैं। इंश्योरेंस हमें गिवन है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मई 2025। अब ये नहीं कंफ्यूज होना, इसमें ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान से आपने इस चीज़ को समझना है। बाय इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मई 2025, मतलब कि ये जो इंश्योरेंस जो है ना, ये इसका साल 1 अप्रैल टू 31 मार्च नहीं चल रहा, पहले तो ये समझना है। इसका चल रहा हैगा यू कैन से फ्रॉम 1 जून टिल 31 मई, गई पूरे साल की है। इधर लिखे ना फॉर द ईयर एंडिंग, अगर ये लाइन ना लिखी होती ना फिर मैं इसको मान लेती कि मार्च अप्रैल मई, दैट मीन्स ये 14 मंथ्स की पे की गई है, 14 मंथ्स की पे की गई है। ठीक है, फिर मैं 14 के साथ डिवाइड करके पर मंथ निकालती और जो है अपनी मार्च तक की पूरे साल की डालती। बट इधर बोला है इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मई 2025, मतलब उनका साल ख़त्म हो रहा है 31 मई को। ठीक है, अगर उनका साल 31 मई को ख़त्म हो रहा है तो उनका साल शुरू हो रहा होगा 1 जून को, तो 1 जून से 31 मई 12 महीने, दैट मीन्स ये 12 महीने की ही है इंश्योरेंस पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट। तो अगर 12 महीने की है तो एक महीने की कितनी हो गई, दैट इज़ अवर 100 रुपया। ठीक है, और अगर हम 31 मार्च 2025 तक देखें, हमने तो 31 मार्च 2025 तक ही लेना है क्योंकि हमारा एनपीओ 31 मार्च 2025 तक बन रहा है। ठीक है, मई तो 31 मार्च 2025 के बाद आएगा, राइट। तो फिर जो अप्रैल और मई के 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा हमने इसमें काउंट की हुई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करेंगे, नो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ तक अमाउंट आएगी, 31 मार्च तक। तो फिर हम इसमें 2 महीने की एक्सक्लूड कर देंगे। अगर 1 मंथ की 100 है तो 2 मंथ्स की 200 हो गई, तो 200 अमाउंट को हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो जो 1000 अमाउंट है वो हम इधर लिख देंगे टू इंश्योरेंस में, और माइनस कर देंगे प्रीपेड 200 जो हमने अगले साल की अभी दे दी। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट था, इसको जो है आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इस पर आप 4 मार्क कर लो। दिस वॉज सो little bit tricky point. Now we will see the income side of income and expenditure account. So it is given by sale proceeds of old paper, by dance tickets, by contest fees, as it is given. We will see the subscription part in which we have to make some calculations. So it is given that is for the year 24-25 84,000. In additional point, it is given that subscription in arrear for 24-25 were 4,000. So simply we will add outstanding at the end and net amount will be written on the credit side of income and expenditure account, right? Then by life membership fees. So it is given that it has been decided to allocate 1/5 of the life membership fee to revenue. As you all know that life membership fee is written on the balance sheet. Okay, in the balance sheet it is written, but they have said in the adjustment that 1/5 will be charged. 1/5 will be charged to as revenue and it will be charged to the credit side of income and expenditure account. So what is the amount of life membership fee? It is 25,000. So 25,000 ka 1/5, so that is 5,000. So at the end when you will see, that is when you will add the credit side, then you will see there is a difference that is left out to the debit side, so that is your surplus, right. Now we will prepare the closing balance sheet of this question as well.
So first of all, on the liability side, you will add the life membership fee 20,000. आउटस्टैंडिंग सैलरी जो इस साल की है 1000 जो हमने ऐड की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. देन आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, आउटस्टैंडिंग क्लीनिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल फंड में you will add surplus and the balance amount is the closing capital, right? And then when you will add all these items, the amount comes out 2,06,800 and it is the total of the balance sheet, right? Now we'll see the asset side. Building is given to you, bank balance is given to you by balance carried down, that is by balance at bank, right? Then prepaid insurance, which the adjustment which we made in income and expenditure account also. After that, outstanding subscriptions for this year, right? That is 4,000. Then in furniture you will write 15,000. See the adjustment. There is an on 31st March, furniture stood at 15,000 and equipment at 10,000. So it is required to write off 20% on furniture and equipments. Okay. तो दोनों के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे. फर्नीचर के ऊपर 15,000 का 20% 3,000, 15,000 में से 3,000 गए, दैट इज 12,000. एंड इक्विपमेंट 7,000 का पहले बैलेंस था, ठीक है. 7,000 का कैसे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस था 10,000 का, उसमें से 3,000 तो सोल्ड हो गया. और जब मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया है, जब डेट मेंशन नहीं है सोल्ड की तो हम मानेंगे वो साल के स्टार्टिंग में ही, ओपनिंग में ही सोल्ड हो गया. तो अगर ओपनिंग में ही इतनी अमाउंट सोल्ड हो गई है तो इस साल तो हम 7,000 पे ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना लॉजिकली. तो इस साल जो है 7,000 के ऊपर ही जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, राइट. देन एडिशनल जो हमने इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं दैट वर परचेज्ड, अगेन यू आर नॉट गिवन विद द डेट, आपको डेट नहीं गिवन इक्विपमेंट्स परचेज की. तो यू विल अज्यूम that we have purchased the equipments at the opening year, ठीक है. साल के शुरू में ही खरीद लिए हमने. तो 7,000 दैट इज 7,000 प्लस 5,000 और इसमें जो है इन दोनों के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगी, ठीक है, दैट विल बी 2,400. 7,000 प्लस 5,000 दैट कम्स आउट 12,000 एंड 12,000 का 20%, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी 2,400 की. तो हम टोटल अमाउंट में से दैट मीन्स 12,000 में से 2,400 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 9,600. तो ये टोटल जो है ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,06,800. सो फार वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द क्वेश्चंस. वी हैव सीन 2 mark question, 3 marks questions, we have solved 6 marks question and we have solved 10 marks question as well, right. We have solved question topic wise and we have seen more than 10 questions full fledged, right. So your homework is to only solve question number 41. With this, our chapter is completed. For more understanding, we will see some multiple choice questions of this chapter, so that we'll get the more better understanding. So, students, open your book page number 22.74. 22.74. So receipts and payment account generally shows, क्या शो करेगा receipts and payment account? डेबिट बैलेंस. क्यों? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का कैसा नेचर होता है, रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट में पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट. Income and expenditure account records transactions of revenue nature only, capital nature only, both revenue and nature, income of only revenue nature and expenditure of revenue and capital nature. No, income and expenditure is a nominal account.
नॉमिनल अकाउंट का रूल ही यही बोलता है, रेवेन्यू नेचर की आइटम्स जो रिकॉर्ड होंगी और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रेवेन्यू नेचर ओनली। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स व्हाट रिवील्स, सरप्लस और डेफिशिएंसी। ठीक है, यही बताता है ना, हम इतनी देर से कैलकुलेट कर रहे हैं सरप्लस या डेफिशिएंसी। डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, अगर डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए रिसीव हुई है तो वो कहाँ पे जाएगी, शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। और अगर यही डोनेशन नॉर्मल गिवन है तो उसको जनरल मान के कहाँ पे डाल देंगे हम, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन, अगेन कैसी रिसीट है ये हमारी, दैट इज कैपिटल रिसीट। ठीक है, लाइबिलिटी है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय अ क्लब, रेवेन्यू रिसीट। इफ देयर इज अ मैच फंड देन मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर ट्रांसफर टू लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, अगर तो मैच फंड है तो फिर हम मैच फंड और उसकी रिसीट्स को लाइबिलिटी में लेके जाएंगे, मैच फंड में रिसीट्स को ऐड कर देंगे, एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। ठीक है, देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो क्या होती है, लाइबिलिटी। इसीलिए जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर हमारी होती है लाइबिलिटी, इसीलिए हम बैलेंस शीट में उसको लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 40,000. Subscription outstanding at the end of previous year was 1,500 and outstanding at the end of current year was 2,000. Subscription received in advance for next year was 800. तो आपने बताना है अमाउंट कितनी जो है क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। तो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने अभी तक कितने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है टोटल 40,000। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द प्रीवियस ईयर के एंड में, प्रीवियस ईयर में मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, तो ये क्या होती है बेटा, माइनस होती है ना। और करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन क्या होती है, प्लस, वो है 2,000, ये 2,000 प्लस हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन अगले साल की हमें अभी मिल गई है तो ये भी क्या हो जाएगी, माइनस। 42,000 में से आप लोग माइनस करोगे, दैट इज 2,300। तो 42,000 में से 2,300 माइनस होगा तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी दैट इज 39,700, और ऑप्शन में आपको गिवन है 39,700। नाउ वी विल सी द 10th क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 60,000. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर वॉज 3,000. received in advance during previous year was 2,000. Subscriptions in arrear at the end of the year was 5,400. तो ये भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले 60,000 जो है हमें अमाउंट गिवन है जो हमें रिसीव हुई है सब्सक्रिप्शन, और उन्होंने कहा है अगले साल का एडवांस अभी मिल गया। तो अगर अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का एडवांस अभी मिल जाए, उसको क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड क्या होता है, माइनस। फिर उन्होंने बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, सारा सेम है बट एट बिगनिंग। तो एट बिगनिंग क्या होगा, प्लस कितनी अमाउंट से, 2,000 से। और उन्होंने बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड है। ठीक है, दैट इज 5,400, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो 60,000 में 5,400 प्लस 2,000 दैट इज 67,500, और 67,500 में से 3,000 गया तो 64,400। सो दिस इज योर आंसर, 67,400 है ना, ये 67,400। तो इसमें से 3,000 गया तो दैट इज योर 64,400। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड आपको गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर डोनेशंस रिसीव्ड टुवर्ड्स दिस फंड अमाउंटेड टू 15,400. अमाउंट स्पेंट ऑन प्राइजेस वर 12,300 एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट वाज 4,000. तो आपने बताना है क्लोजिंग प्राइज फंड में कितनी अमाउंट जाएगी। तो ये जनरली क्वेश्चन आपको
प्रॉपरली पूछ लेता है 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन कि प्राइस फंड में कितनी अमाउंट जाएगी, तो हम निकाल लेते हैं प्राइस फंड में कितनी जाएगी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस दैट इज 32,800। अब इसमें हमें कुछ डोनेशंस रिसीव हुई हैं, ये डोनेशंस को हम ऐड कर देंगे। कितने की डोनेशंस है? 15,400। इसमें से कुछ प्राइजेस भी दिए गए हैं, तो वो प्राइजेस को हम माइनस कर देंगे, 12,300। और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड, अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो वो भी इसी की इनकम है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइस फंड्स दिस इज गिवन दैट इज 4,000। ठीक है, तो अब जो है ये नेट अमाउंट आ जाएगी प्राइस फंड की। आई होप आपको नेट और ग्रोस का मीनिंग अब समझ लग गया होगा। ग्रोस होती है सारी टोटल करके अमाउंट, दिस इज द ग्रोस अमाउंट, और नेट अमाउंट निकलती है सब कुछ जो कम करने वाला उसको कम कर दो, जो ऐड करने वाला उसको ऐड कर दो। तो 32,800 में हम ऐड करेंगे 15,400 प्लस 4,000 एंड विल सब्ट्रैक्ट 12,300। तो ये जो अमाउंट आई है दैट इज 39,900। 39,900 देखते हैं ऑप्शंस में अमाउंट है। हाँ जी, 39,900 एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो नाउ वी विल सी 12th क्वेश्चन, MCQ question. Salary paid in cash during the current year was 80,000. Okay. Outstanding salary at the end 4,000. Salary paid in advance last year pertaining to current year was 3,200. Paid in advance during current year for next year was 5,000. Okay. तो ये भी सैलरी का क्वेश्चन है। सैलरी जो पे की कैश में वो है 80,000, सैलरी पेड इन कैश, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम इसी साल की डालेंगे सैलरी। 80,000 गिवन है, आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या होता है? प्लस। ठीक है, पेड इन एडवांस लास्ट ईयर परटेनिंग टू करंट ईयर वॉज 3,200, मतलब हमने पिछले साल एडवांस दे दी इस साल के लिए, तो ये क्या है? एडवांस एट बिगिनिंग, और जो एडवांस एट बिगिनिंग होता है ये क्या हो जाता है? प्लस। तो एडवांस एट द बिगिनिंग कितनी है? 3,200। ठीक है, इसके बाद दिया पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, इस साल एडवांस दे दिया अगले साल के लिए, तो वो क्या होता है? एडवांस एट एंड। तो ये जो एडवांस एट एंड है ये क्या होगा बेटा? माइनस। ठीक है, तो ये जो अभी अमाउंट आएगी ना नेट अमाउंट, इट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये हम निकाल लेते हैं अमाउंट, 80,000 प्लस 4,000 then plus 3,200 will subtract minus 5,000. So the net amount which comes is 82,200. So we will see the option is there or not. So yes, this is the C option is correct. So these were the questions which were based on your understandings, which I have discussed. Even though you have to solve these questions by your own because you have already completed the chapter, na? So you will better understand how much you have got from this chapter. So receipts and payment account is a real account. Income and expenditure account is a nominal account. Life membership fee received by an institution, ये क्या होती है? That is our capital. Then subscription received by an institution is a revenue. Payment of honorarium is treated as revenue expenditure. Entrance fees is treated as again capital. Income and expenditure is prepared dash concern, that is for non trading. Income and expenditure non trading के लिए बनता है, trading के लिए तो we prepare profit and loss account, right? Then excess of expenditure over income, expenditure ज़्यादा है income से, that means it will be deducted, and the term which is known as the term which represents excess of expenditure over income is deficit, that is deficit, right? Then life membership fee received by a club are shown in the balance sheet, और कौन सी साइड पे? That is on liability side.
Subscription outstanding in case of a club are shown on the dash side of a balance sheet. That is, asset side of the balance sheet. So you can solve these true and false. So this was all about your chapter, not for profit organization. In next class we will start our new chapter, and that chapter will take only 1 day to complete. That is international financial reporting standards. It will take only 1 day. So thank you so much class. This was all about today's session. Thank you.